Hello dear children, welcome to your English class. I hope you all are good, hale and hearty and doing well, and at the same time you are enjoying your online classes and the videos which are uploaded on YouTube on everyday basis. I do hope that you are seeing those videos. आप लोग उन वीडियोस को जरूर देख रहे होंगे. वीडियोस देखोगे, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, दिस इज आवर इंग्लिश क्लास and this is your course book, Wordsworth English Reader Book 1. सबके पास बुक है. We have already completed poem number 1, that is alphabet song, and lesson 1, let us be friends. We have completed these two chapters. Now today I will start lesson number 2, Little Birdie. Lesson 2, Little Birdie. Now tell me, What do you understand by birdie? Birdie से आपको क्या समझ में आता है? Birdie का मतलब क्या है? Birdie means little bird. एक छोटी सी bird. छोटी सी bird को birdie कहते हैं. Okay? So this lesson is about a little bird who hurts her wings. ये जो लेसन है एक ये छोटी सी बर्ड के बारे में है जो कि जिसके विंग्स में चोट लग जाती है. फिर कैसे उसको देयर इज अनदर लिटिल गर्ल हु पिक्स हर अप, फिर उसको फर्स्ट एड देती है. शी टेक्स केयर ऑफ द बर्ड एंड देन द बर्ड बिकम्स ऑल राइट एंड इट फ्लाइज अवे. ओके, व्हेन द बर्ड फ्लाइज अवे, the little girl becomes very sad, but then she sees that the bird has come back again. Bird जो है वो फिर से वापस आ गई है and it has made a nest on a tree in front of that little girl's house. So the little girl was very happy. So this lesson is about a little bird. Birdie is for little birds. Bird बोलते हैं the word BIRDIE. Birdie means little bird. छोटी सी एक bird. Little मतलब छोटी. So little birdie means छोटी सी एक bird. First, I will just read the lesson and then I will explain you. When I read the lesson, you all must open your book. सबकी बुक्स खुली होनी चाहिए and you follow in the book. जो मैं लेसन की रीडिंग कर रही हूँ उसको आप अपनी बुक में फॉलो करते चलोगे. ओके, सो फर्स्ट आई विल जस्ट रीड द लेसन. आई विल एक्सप्लेन इट वंस एंड देन आई विल रीड इट अगेन एंड यू विल फॉलो मी. ठीक है, पहले एक बार मैं रीडिंग करूंगी which is known as model reading. I will read it once and I will tell you how to read it. कैसे लेसन को पढ़ना चाहिए, how to pronounce any particular word, then I will explain the meaning and then I will do the reading part once again and then you will have to follow me. फिर जैसे मैं पढ़ूंगी आपको मेरे साथ साथ पढ़ना होगा. Okay? One day Jaya was playing in the garden. She saw a tiny bird
lying on the ground. She picked it up gently. The bird had hurt her wings. Jaya ran home to her mother. Her mother quickly cleaned the injured wing of the bird and bandaged it. Her mother then put some cotton into a basket to make a soft bed for the bird. Every day, Jaya and her mother fed her crumbs of food. Slowly, the bird grew strong and the wings healed. On a bright sunny morning, the little bird flew away. Jaya felt sad. She missed her little friend. But then, one day, she saw the little bird singing on her window. How happy Jaya was! She looked out and saw that the little bird had made a nest on her tree in her garden. There were 4 tiny eggs in the nest. Jaya was very excited. She wondered how long it would take for the eggs to hatch. Now I will explain the lesson in English as well as in Hindi. मैं लेसन एक बार इंग्लिश में और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? One day, Jaya was playing in the garden. Now, who is Jaya? Jaya is a little girl. As you can see in the picture, she is a small girl. छोटी सी एक लड़की है Jaya, maybe around 4-5 years old. आप लोग के जितनी बराबर होगी. So one day, Jaya was playing in the garden. Where was Jaya playing? Jaya कहाँ खेल रही थी? Jaya was playing in the garden. She saw a tiny bird lying on the ground. Tiny means very small. Okay? Tiny means very small. बहुत छोटा. उसने देखा जब वो गार्डन में एक दिन जया खेल रही थी तो उसने देखा कि जमीन पे, ग्राउंड मतलब जमीन पर, उसने देखा कि जमीन पर एक बहुत छोटी सी बर्ड गिरी हुई थी. लाइंग मतलब ऐसे गिरे रहना. She picked it up gently. Gently मतलब बहुत धीरे से, softly, मतलब ऐसे करके नहीं उठा लेना, बिल्कुल धीरे से उसको उठाना, बहुत gently. She picked it up gently. उसने बहुत gently, बहुत धीरे से उसको उठाया. Okay? The bird had hurt her wing. क्या हो गया था? जो bird थी उसने उसके पंख, जो wings होते हैं, birds कैसे उड़ती हैं? अपने विंग से उड़ती है ना, तो उसके जो विंग्स थे उसमें चोट लग गई थी. जया रैन होम टू हर मदर. उस बर्ड को लेकर के जया दौड़ करके घर गई अपनी मम्मी के पास. हर मदर क्विकली क्लीन द इंजर्ड विंग ऑफ द बर्ड एंड बैंडेज्ड इट. हर मदर क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से. उसकी मम्मी ने जल्दी से जो बर्ड का जो इंजर्ड विंग था, मतलब जहां उसको चोट लगी थी, उसको जल्दी से क्लीन किया और उस पे बैंडेज लगा दी. जैसे आपको जब चोट लगती है, खेलते खेलते बच्चे अक्सर गिर जाते हैं, कभी घुटने में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई. अक्सर इट्स वेरी कॉमन दैट चिल्ड्रन गेट इंजर्ड व्हाइल प्लेइंग. खेलते टाइम गिर गए, चोट लग गई, झूला झूल रहे थे गिर गए, साइकिलिंग के टाइम पे गिर गए. तो कभी अगर आप ऐसे गिर जाते हो तो क्या होता है? अगर थोड़ी सी चोट है तो घर पे मम्मी पापा उसको क्लीन करके उस पर बैंडेज वगैरह लगा देते हैं. अगर ज्यादा चोट लगी है तो हॉस्पिटल जाते हो, वहां पे भी डॉक्टर्स क्या करते हैं? दे क्लीन द वूंड. जो चोट होती है उसको क्लीन करते हैं और क्लीन करके फिर क्या करते हैं? उस पे बैंडेज बांध देते हैं. तो सिमिलरली जया की मम्मी ने क्या किया कि उन्होंने जल्दी से उसके जो विंग्स थे जहां पे चोट लगी थी उसको जल्दी से क्लीन किया और उसके बाद इंजर्ड मतलब चोट लगा हुआ,
जहां पे चोट लगी हो. ओके, एंड बैंडेज्ड इट. बैंडेज्ड मीन्स जल्दी से पट्टी बांध देना. नाउ कैन यू टेल मी व्हाई इज इट नेसेसरी फर्स्ट टू क्लीन द वुंड? जहां चोट लगती है उसको सबसे पहले क्लीन करना क्यों जरूरी है? बिना क्लीन किए भी तो हम उस पर बैंडेज कर सकते हैं ना. नो, वी नेवर बैंडेज एनी इंजरी विदाउट क्लीनिंग इट. बिना क्लीन किए हम कोई भी इंजरी पे, किसी भी इंजरी पे बैंडेज नहीं बांधते हैं. उससे क्या होगा? हम गिरते हैं, पता नहीं कौन कौन से जर्म्स लग जाते हैं. तो अगर क्लीन नहीं करेंगे तो वो सारे जर्म्स, सारे बैक्टीरिया जो भी है वो सब हमारी चोट में रह जाएंगे एंड देन फिर वो और आगे प्रॉब्लम होगी. सो फर्स्ट द वुंड इज क्लीन. जहां भी चोट लगी है पहले उसको क्लीन करते हैं एंड देन इट इज बैंडेज्ड. ओके. हर मदर देन पुट सम कॉटन इनटू अ बास्केट टू मेक अ सॉफ्ट बेड फॉर द बर्ड. उसकी मम्मी ने फिर क्या किया? कुछ कॉटन, कॉटन मतलब रुई. कॉटन इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होती है रुई. तो उसकी मम्मी ने क्या किया कि उन्होंने थोड़ा सा कॉटन लेकर के एक बास्केट में रखा, जिससे कि बर्ड के लिए एक सॉफ्ट मतलब बहुत नरम, मुलायम, एक मुलायम सा सॉफ्ट सा बेड बना दिया. सिंस द बर्ड वॉज इंजर्ड, तो अभी फ्लाई नहीं कर सकती थी, तो उसको रहने के लिए, ठीक होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था. तो जया की मम्मी ने एक बास्केट में थोड़ी सी कॉटन रख करके उसके लिए एक सॉफ्ट सा बेड बना दिया. एवरी डे जया एंड her मदर फेड हर crumbs ऑफ फूड. रोज जया और उसकी मम्मी बर्ड को खाना खिलाते थे. खाना वो क्या खिलाते थे? crumbs ऑफ फूड. क्रम्ब का मतलब होता है जैसे जो ब्रेड होती है या बिस्किट होता है, उसके बहुत फाइन बहुत महीन पीसेस. अगर ब्रेड को थोड़ा सा हम टोस्ट जैसा बना देते हैं, अगर थोड़ा सा उसको सेक देते हैं एंड देन इफ यू क्रम्बल इट, उसके बहुत फाइन पीसेस बन जाते हैं. सिमिलरली बिस्किट भी अगर हाथ में लेके ऐसे करोगे तो बहुत फाइन पीसेस बन जाते हैं. तो उनको कहते हैं क्रम्स. ओके, वेरी फाइन पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बिस्किट, उसको क्रम्ब बोलते हैं. तो रोज जया और उसकी मम्मी बर्ड को जो है वैसे क्रम्ब बना करके खिलाते थे, बिकॉज बर्ड वॉज वेरी स्मॉल, वो बड़ी कोई चीज नहीं खा सकती थी. सो दे यूज टू फीड हर क्रम्स ऑफ ब्रेड. ठीक है. स्लोली द बर्ड ग्रू स्ट्रॉन्ग एंड विंग्स हील्ड. स्लोली मतलब धीरे धीरे क्या हुआ? जो बर्ड थी वो स्ट्रांग हो गई. उसको बिकॉज उसकी अच्छे से केयर हो रही थी, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ, उसकी बहुत अच्छी केयर हो रही थी, उसको रोज खाना मिल रहा था. तो बर्ड धीरे धीरे क्या हुआ? स्ट्रांग हो गई और उसके विंग्स जो थे वो ठीक हो गए. हील्ड मतलब ठीक होना. तो बर्ड के जो विंग्स थे वो हील हो गए, मतलब ठीक हो गए. ऑन अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, जब बहुत अच्छी सी धूप रहती है मॉर्निंग में, इट्स वेरी ब्राइट, कहीं क्लाउडी नहीं है. ओके. गर्मियों में तो धूप रहती ही रहती है. गर्मियों में तो इट्स वेरी रेयर कि धूप ना हो, बारिश वगैरह हो जाए. ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता है, बट स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन और विंटर, जब विंटर में भी अक्सर सुबह उठो तो देखते चारों तरफ फॉग रहता है. इट्स नॉट वेरी सनी, सन नहीं दिखाई पड़ता है. रेनी सीजन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज क्लाउडी. सो व्हेन द सन इज देयर इन द मॉर्निंग, इसे ना क्या, वाह, व्हाट अ ब्राइट सनी मॉर्निंग इट इज टुडे. कितना अच्छा सा मौसम है, ब्राइट सा सन है बाहर. सो ऑन अ ब्राइट सनी मॉर्निंग मतलब एक बहुत अच्छा सा दिन था, वो ब्राइट सा सन था. द लिटिल बर्ड फ्लू अवे. जो लिटिल बर्ड थी वो उड़ गई. ठीक है, वो उड़ के चली गई. फ्लू मतलब उड़ जाना, वो उड़ के चली गई. जया फेल्ट सैड. जया को बहुत दुख हुआ, बिकॉज एवरी डे फॉर द पास्ट फ्यू डेज शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ द बर्ड. बर्ड की देखभाल कर रही थी, तो उसकी बर्ड से उसकी बहुत फ्रेंडशिप हो गई थी. इसके हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था ना, लेट अस बी फ्रेंड्स. तो उस लेसन में तो टिया वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद अदर चिल्ड्रन. जो टिया थी वो और दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती थी, बट
Animals are also very good friends. Those who keep pets at home, they will understand. जिनके पास घर में पेट्स हैं, जैसे बहुत लोग डॉग रखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल कीप डॉग एज पेट. बहुत सारे लोग बर्ड्स भी रखते हैं, पैरट रखते हैं. इफ यू कीप एनी पेट एट होम, यू बिकम सो फ्रेंडली विद देम, दे बिकम सो फ्रेंडली विथ यू. मतलब इतने अच्छी एक फ्रेंडशिप हो जाती है कि अगर आप नहीं रहते हो तो द एनिमल्स ऑल्सो फील वेरी सैड. इफ यू गो आउट समवेयर, दे फील वेरी सैड. एंड वेन यू कम बैक, सैड मतलब दे फील वेरी अपसेट, दे फील लोनली. एंड वेन यू कम बैक, दे आर सो एक्साइटेड, दे आर सो हैप्पी. डॉग्स जिनके घर में होंगे, आपने देखा होगा, आप कहीं चले गए, डॉग जो आपका बहुत अपसेट है, एंड वेन यू कम बैक, दे आर सो हैप्पी. वो आपके ऊपर जंप करते हैं, आपको हग करते हैं, अपनी टेल पीछे ऐसे 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 अपनी वैग करते हैं. मतलब वो अपनी कितने तरीके से अपनी हैप्पीनेस दिखाते हैं. तो जब हम कोई एनिमल घर में रखते हैं, सो वी बिकम फ्रेंड्स विद देम ऑल्सो. उनके साथ भी हमारी बहुत फ्रेंडशिप हो जाती है एंड एक बहुत अटैचमेंट हो जाता है. जैसे हम अपने पेरेंट्स को, जैसे घर वालों को प्यार करते हैं, वैसे हम एनिमल्स को भी प्यार करने लग जाते हैं. ठीक है. एंड एनिमल्स अंडरस्टैंड दिस. एनिमल्स को कौन कितना प्यार कर रहा है वो बहुत अच्छे से समझते हैं. दे कैन नॉट स्पीक योर लैंग्वेज. वो आपकी लैंग्वेज तो बोल नहीं सकते. आप जो बोल सकते हो, दे कैन नॉट से इट, बट दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन सो मेनी वेज. वो अपने आप को बहुत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. इफ दे आर अपसेट, इफ दे आर सैड, इफ दे आर हैप्पी, इफ दे आर हंग्री, या उनका मूड अच्छा नहीं है, तो वो अपने आप को बहुत तरह से एक्सप्रेस करते हैं. So when this bird flew away, Jaya felt very sad. जया बहुत दुखी हो गई. Why? Because इतने दिन में उसकी उस बर्ड से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी. And now she missed her little friend. अब वो अपने उस लिटिल फ्रेंड को बहुत मिस कर रही थी. ओके. आपका भी, आप लोग साथ साथ पढ़ते हो, किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, फिर क्या होता है, उसके पापा की पोस्टिंग हो गई, वो कहीं और चला गया, तो आप लोग थोड़े दिन बहुत सैड फील करते हो ना कि मेरी फ्रेंड चली गई, मेरा फ्रेंड चला गया. तो सिमिलरली जिया वाज आल्सो वेरी सैड. उसकी लिटिल फ्रेंड चली गई थी. बट देन वन डे शी सॉ द लिटिल बर्ड सिंगिंग ऑन हर विंडो. बट सडनली एक दिन उसने क्या देखा कि जो लिटिल बर्ड थी वो जया के रूम की विंडो पे बैठ करके शी वॉज सिंगिंग. सिंगिंग का मतलब है शी वॉज चर्पिंग. सिंगिंग. अब बर्ड्स जो है वो ऐसे, जैसे हम लोग गाना गा सकते हैं, हम भी सारे लोग गाना नहीं गा सकते. लाइक आई कैन नॉट सिंग, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु सिंग सो वेल. तो जैसे हम लोग तो गाना गा सकते हैं, बर्ड्स कैन नॉट सिंग, बट उनकी जो चर्पिंग साउंड होती है, जो उनकी चहकने की, चिड़िया की जो चहकने की आवाज होती है, इट्स लाइक सिंगिंग. मतलब वो गाने की तरह ही लगती है, इतनी अच्छी लगती है वो. वेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, किसी दिन अगर आप बहुत जल्दी सुबह उठोगे तो देखोगे अर्ली मॉर्निंग कितनी बाहर बर्ड्स के आवाजें आती हैं, बर्ड्स की चर्पिंग साउंड, बर्ड्स की चहचहाने की कितनी आवाजें आती हैं बाहर से. तो दैट साउंड इज लाइक सॉन्ग. वो गाने जैसी लगती है बिल्कुल. तो एक दिन जिया ने क्या देखा कि जो लिटिल बर्ड थी वो उसकी विंडो पे बैठ करके शी वॉज चर्पिंग. मतलब एंड उसकी जो चर्पिंग थी, जो उसकी चहचहाने की आवाज थी, इट वॉज लाइक सॉन्ग. बिल्कुल गाने की तरह लगी जिया को. शी वॉज सो हैप्पी. हाउ हैप्पी जिया वॉज. मतलब जिया कितनी खुश हो गई उस बर्ड को देख करके, बिकॉज हर लिटिल फ्रेंड वॉज बैक. शी वॉज वेरी हैप्पी. शी लुक्ड आउट एंड सॉ दैट द लिटिल बर्ड हैड मेड अ नेस्ट ऑन अ ट्री इन हर गार्डन. उसने बाहर देखा और देखा कि जो लिटिल बर्ड थी उसने जो जया के गार्डन के एक ट्री पे उसने अपना नेस्ट बनाया था. जया का जो गार्डन था वहां पे एक ट्री था, उस ट्री पे उस लिटिल बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया था. ओके. देयर वर 4 टाइनी एग्स इन द नेस्ट. उस नेस्ट के अंदर कितने टाइनी एग्स थे? 4. There were 4 tiny eggs in the nest. Jaya was very excited. Jaya बहुत excited हो गई. Jaya बहुत खुश हो गई. She wondered how long it would take for the eggs to hatch. क्या होता है when a bird lays its eggs? जब कोई भी bird अपना जब eggs lay करती है
तो उसमें से तुरंत बेबी बर्ड्स नहीं निकलते हैं. द बर्ड हैचेज देम. वो एग्स के ऊपर बैठी रहती है फॉर फ्यू डेज. 1 डे, 1 तो नहीं, 2, 3, 4, 5, कुछ एक डेज उन एग्स के ऊपर बैठी रहती है. एंड व्हेन द एग्स हैच, वो अपने आप हैच होते हैं. हैच होने का मतलब है जब उनके अंदर जो चिक्स होते हैं, जो बेबी बर्ड्स होते हैं, व्हेन दे आर फुली डेवलप्ड, जब वो पूरी तरह ग्रो कर जाते हैं, जब डेवलप कर जाते हैं, तब वो एग ब्रेक होता है और अपने आप उसमें से बर्ड निकल के आती है. इफ समवन ब्रेक्स द एग, अगर कोई एग को जल्दी से अपने से ब्रेक कर दे कि उसमें से जल्दी से बर्ड्स निकल आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है. अगर कोई एग को ब्रेक कर देता है तो जो अंदर जो बर्ड्स होती है, दे नेवर कम आउट, फिर बाहर ही नहीं आ पाती हैं. ठीक है. सो ये उनका प्रोसेस है. जब वो अंदर पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, पूरी तरह ग्रो हो जाते हैं, तो वो एग्स हैच होते हैं, मतलब वो दे ब्रेक एंड द बेबी बर्ड्स कम आउट. तो जया वॉज वेरी एक्साइटेड. उसको लगा कि अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा कि ये एग्स हैच होंगे और कब इनमें से बेबी बर्ड्स बाहर आएंगे. ओके. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बर्डी. नाउ I will read the lesson and you will repeat after me. मैं लेसन रीड करूंगी और आप मेरे साथ लेसन को रीड करोगे. क्लियर? ठीक है. One day Jaya was playing in the garden. She saw a tiny bird lying on the ground. She picked it up gently. The bird had hurt her wings. Jaya ran home to her mother. Her mother quickly cleaned the injured wing of the bird and bandaged it. Her mother then put some cotton into a basket to make a soft bed for the bird. Every day, Jaya and her mother fed her. Fed is the past tense of feed. Feed मतलब खिलाना. ठीक है. तो रोज जया और उसकी मम्मी जो है वो बर्ड को crumbs of food खिलाते थे. सिंस ये past tense में बता रहे, मतलब वो रोज खिलाते थे. So every day, Jaya and her mother fed her crumbs of food. Slowly, the bird grew strong and her wings healed. On a bright sunny morning, the little bird flew away. Jaya felt sad. She missed her little friend. But then one day, she saw the little bird singing on her window. How happy Jaya was. She looked out and saw that the little bird had made a nest on a tree in her garden. There were 4 tiny eggs in the nest. Jaya was very excited.
एक्साइटेड का मतलब बहुत खुश, बहुत उत्साहित। जैसे आप कुछ स्पेशल काम होने वाला होता है तो कहते हो ना कि आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, टुडे इज आवर एनुअल फंक्शन, आई एम वेरी एक्साइटेड। आज मेरा बर्थडे है, देयर इज अ पार्टी इन द इवनिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई विल गेट सो मेनी गिफ्ट, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुडे, आई एम वेरी एक्साइटेड। ठीक है ना? तो एक्साइटेड मतलब बहुत खुश होना, फुल ऑफ एनर्जी, जैसे बहुत एनर्जी के साथ बहुत खुश होना। ओके, जब कुछ स्पेशल कुछ काम होता है व्हेन वी फील वेरी हैप्पी, वी आर वेरी एक्साइटेड कि अरे वाह, आज तो कुछ नया ऐसा होने वाला है, आज घर में कुछ नया सामान आने वाला है, सम रिलेटिव्स आर कमिंग जिसको आप बहुत पसंद करते हो। ओके, यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स प्लेस। तो एक्साइटेड का मतलब है बहुत खुश होना। तो जया वॉज वेरी एक्साइटेड, जया बहुत एक्साइटेड थी। क्यों? बिकॉज शी सॉ हर लिटिल फ्रेंड, उसने अपने छोटे फ्रेंड को देखा। हु वॉज अ लिटिल फ्रेंड? दैट लिटिल बर्डी। She wondered and she was mainly excited because she saw the eggs in the nest. वो excited क्यों थी? Excited थी mainly because उसने उस nest के अंदर eggs देखे। Now she was wondering, वो सोच रही थी कि वो eggs कितने दिन में hatch होंगे, कितने दिन में hatch होंगे और कितने दिन में उनमें से little birds, baby birds निकल करके बाहर आएंगे। So I hope the story is clear to you. आप सबको स्टोरी समझ में आई है। एक बार मैं फिर से स्टोरी को हिंदी में रीड करती हूँ। ओके, हिंदी में एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एक दिन जया कहाँ खेल रही थी? अपने गार्डन में। गार्डन में उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक छोटी सी बर्ड जमीन पे पड़ी हुई थी। उसने क्या किया? उसने इस छोटी सी बर्ड को बहुत जेंटली उठाया और उठा के रखा। वहां पर उसने देखा कि बर्ड के जो विंग्स थे उसमें ही चोट लग गई थी। अभी बर्ड के अगर विंग्स ही इंजर्ड हो जाएंगे, अगर विंग्स में चोट लग जाएगी तो बर्ड उड़ेगी कैसे? बर्ड तो उड़ नहीं पाएगी। एंड दैट इज व्हाई इट फेल डाउन, वो गिर गई। तो उसने देखा कि बर्ड के जो विंग्स थे उसमें चोट लग गई थी। जया रैन होम टू हर मदर। उसने क्या किया? वो भाग करके अपनी मम्मी के पास गई। उसकी मम्मी ने जल्दी से उसके वुंड को, उसकी जो इंजर्ड विंग था, विंग में जहां चोट लगी थी, उसको जया की मम्मी ने जल्दी से क्लीन किया और फिर उस पर बैंडेज लगा दिया। रोज जया और उसकी मम्मी उस बर्ड की बहुत अच्छे से केयर करते थे। उसके लिए उन्होंने एक कॉटन रख के, एक बास्केट में कॉटन रख करके उसके लिए एक सॉफ्ट सा बेड भी बना दिया। हियर यू कैन सी द बास्केट। यहाँ पे आप बास्केट देख सकते हो। बास्केट के अंदर कॉटन इज नॉट विजिबल, कॉटन नहीं दिख रही है, बट यू कैन सी द बर्ड एंड अ बैंडेज टाइड टू हर विंग्स। यहाँ पे आप बास्केट देख सकते हो और बास्केट के अंदर बर्ड भी देख सकते हो और उसके विंग्स पे जहाँ पे चोट लगी थी वहां पे जो बैंडेज लगाया जया की मम्मी ने, यू कैन सी दैट ऑल्सो। एंड यू कैन सी दैट जयाज मदर इज फीडिंग द बर्ड। जया की मम्मी जो है वो बर्ड को स्पून से खिला रही है। ओके, तो जया की मम्मी ने उसके लिए कॉटन रख करके एक सॉफ्ट सा बेड बना दिया। रोज जया और उसकी मम्मी जो है उस बर्ड को फीड करते थे, खिलाते थे और धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसकी केयर हो रही थी तो वो स्ट्रांग हो गई। व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं, तो व्हेन वी टेक मेडिसिन, रेगुलरली हम दवाई लेते हैं, अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं, तो थोड़े दिन बाद हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। तो सिमिलरली दिस बर्ड ऑल्सो ग्रीव स्ट्रॉन्ग और उसके विंग्स भी ठीक हो गए। जब विंग्स ठीक हो गए तो एक दिन वो उड़ गई। जया ने देखा कि वो बर्ड तो उड़ गई थी, तो जया बहुत सैड हो गई। वो अपने लिटिल फ्रेंड को बहुत मिस कर रही थी। बट देन वन डे, एक दिन उसने क्या देखा कि लिटिल बर्ड जो थी वो उसके विंडो पे बैठ के इट वॉज चर्पिंग, मतलब बर्ड जो है वो चहचहा रही थी और उसकी जो चर्पिंग थी इट वॉज लाइक अ सॉन्ग, बिल्कुल वो गाने जैसी। बिकॉज जया फेल्ट सो हैप्पी। उसने जब बर्ड को देखा तो वो उसको इतना अच्छा लगा कि उसकी जो चर्पिंग साउंड थी वो जया को एकदम सॉन्ग की तरह लगी। तो उसने बाहर देखा और देखा कि लिटिल बर्ड ने एक ट्री पे, उसके जया के गार्डन में एक ट्री पे अपना नेस्ट बनाया था।
maybe that bird was sitting on the window and chirping to call Jaya. जया को ये बताने के लिए कि she is back. जया को ये बताने के लिए कि वो वापस आ गई है एंड उसने नेस्ट बनाया है, नेस्ट में एग्स दिए हैं. मे बी ये बताने के लिए इट वॉज चर्पिंग. तो जया ने जब देखा तो शी वॉज वेरी हैप्पी. नेस्ट के अंदर कितने एग्स थे? 4 eggs वर देयर. एंड नाउ जया वॉज वंडरिंग कि इन एग्स को हैच होने में कितना टाइम लगेगा. ओके, सो दिस इज द स्टोरी. We have done the reading part today. In my next video, I will tell you the spell well words and then the word meanings. Okay, children? So I hope you enjoyed the lesson. आप लोग को छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी, मजा आया. Today I will stop here only. In my next class, we will meet with spell well words and word meanings. Okay, children? Thank you.